Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer, Southern Business School, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Business Law. This is week 9 and lecture number 9. आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी के बारे में बात की और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में. So the learning objectives of this lecture are corporate governance, main parties of corporate governance, principles of corporate governance, role of the accountant and auditors, need of corporate governance in Pakistan, compliance with the code of corporate governance. So ये हमारे इस lecture के learning objectives हैं. Starting with corporate governance. Corporate governance is the set of processes, customs, policies, laws and institutions affecting the way a corporation is directed, administered or controlled. Corporate governance also includes the relationship among the many stakeholders involved in the goals for which the corporation is governed. The principal stakeholders are the shareholders, management and the board of directors. Other stakeholders include employees, customers, creditors, suppliers, regulators and the community at large. अब अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो प्रोसेसेस, वो कस्टम्स, वो पॉलिसीज, वो लॉज और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो जरूरी होती हैं कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम उन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, उन लॉज और इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि जिनकी मदद से हम कॉर्पोरेशन को एडमिनिस्टर और कंट्रोल करते हैं. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम स्टेक होल्डर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. ये स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं गोल्स को अचीव करने में कि कॉर्पोरेशन को हम गवर्न कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हम गवर्न कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए. ये स्टेक होल्डर्स जो वो इन्वॉल्व होते हैं गोल्स को अचीव करने में, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में. इसी तरह से प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो वो शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. और दूसरे स्टेक होल्डर्स में हमारे पास एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, रेगुलेटर्स और कम्युनिटी भी आ जाती है. हमारे जो प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. इसके अलावा ब्रॉडर लेवल पर अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, रेगुलेटर्स और कम्युनिटी भी हमारे स्टेक होल्डर्स में आते हैं. Now, corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. It covers topics such as how power is divided between the board and the shareholders, the accountability of the board to the members, the rules and procedure for making decisions. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सिस्टम है जिससे कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है. इसमें हम जिन टॉपिक्स की बात करते हैं उनमें हम बात करते हैं कि पावर किस तरह से डिवाइड होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान और शेयर होल्डर्स के दरमियान, अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होगी बोर्ड की, और रूल्स और प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग के लिए रूल्स और प्रोसीजर्स की हम बात करते हैं. इन टॉपिक्स को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिस्कस करते हैं. नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मल्टी-faceted subject. An important theme of corporate governance is to ensure the accountability of certain individuals in an organization through mechanisms that try to reduce or eliminate the principal-agent problem. A related but separate thread of discussion focuses on the impact of a corporate governance system in economic efficiency with a strong emphasis on shareholders' welfare. There are yet other aspects to the corporate governance subject such as the stakeholder view and the corporate governance models around the world. अब corporate governance की एक important theme accountability है कि किस तरह से हम certain individuals की accountability को ensure करेंगे और principal agent problem को reduce करेंगे, minimize करेंगे. Now what is principal agent problem? अगर हम principal agent problem की बात करें तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में
आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो उनके एजेंट होते हैं। अब जो एजेंट है उसके लिए जरूरी होता है कि वो प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, यानी वो जो भी काम करे वो प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। अगर एजेंट वो काम नहीं करेगा जो प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा तो वहां से प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम या एजेंसी प्रॉब्लम अराइज होगा। सो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो हमें अलाउ करती है कि हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को एलिमिनेट करें, मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें। इसी तरह से एक रिलेटेड लेकिन सेपरेट थ्रेड ऑफ डिस्कशन जो है वो फोकस करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इम्पैक्ट को ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है शेयर होल्डर्स वेलफेयर पर। इसी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम स्टेक होल्डर व्यू की बात करते हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स की बात करते हैं कि दुनिया में कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स यूज हो रहे हैं। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मल्टी फेसेटेड सब्जेक्ट है और इसमें हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करके। इसी तरह से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इम्पैक्ट को देखते हैं ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम स्टेक होल्डर व्यू की बात करते हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स की बात करते हैं। Now, main parties of corporate governance. Other stakeholders who take part include suppliers, employees, creditors, customers, and the community at large. Shareholders. In corporations, the shareholder delegates the same rights to the manager to act in the principal's best interest. This separation of ownership from control implies a loss of effective control by shareholders over managerial decision. Partly as a result of this separation between the two parties, a system of corporate governance control is implemented to assist in aligning the incentives of managers with those of shareholders. With significant increase in equity holding of investors, there has been an opportunity for a reversal of the separation of ownership and control problems because ownership is not so diffuse. अब हम मेन पार्टीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। इसमें हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि जिनमें सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स और कम्युनिटी आ जाती है। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो जिस तरह से हमने पहले बात की कि कॉर्पोरेशंस में शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिसीजन राइट्स को डेलीगेट करते हैं मैनेजर्स को, और ये क्यों किया जाता है कि मैनेजर्स एक्ट करें इन द प्रिंसिपल्स बेस्ट इंटरेस्ट। अब ये जो सेपरेशन है ओनरशिप की फ्रॉम कंट्रोल, इसमें जो इफेक्टिव कंट्रोल है शेयर होल्डर्स का मैनेजरियल डिसीजन से वो कम हो जाता है। सो यहाँ से एजेंसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हमने पहले भी बात की कि एजेंसी प्रॉब्लम्स को हम मिनिमाइज करते हैं विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो मेन पार्टीज में हमने सबसे पहले शेयर होल्डर की बात की, उसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। A board of directors often plays a key role in corporate governance. It is their responsibility to endorse the organization's strategy, develop directional policy, appoint, supervise, and remunerate senior executives, and to ensure accountability of the organization to its owners and authorities. The company secretary, known as a corporate secretary and often referred to as chartered secretary, is qualified by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators is high-ranking professional who is trained to uphold the highest standards of corporate governance, effective operations, compliance and administration. अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को इंडोर्स करें, डायरेक्शनल पॉलिसीज डेवलप करें और इसी तरह से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुपरवाइज करते हैं उनको, उनकी रेम्यूनरेशन को फाइनलाइज करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन की ओनर्स और अथॉरिटीज के सामने। सो ये तमाम काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, वो पॉलिसीज डेवलप कर रहे होते हैं, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करते हैं और उनकी रेम्यूनरेशन को फाइनलाइज करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल हो ऑनर्स और अथॉरिटीज के सामने।
अब अगर हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, जिसको हम कॉर्पोरेट सेक्रेटरी भी कहते हैं, दैट इंडिविजुअल इज हाई रैंकिंग प्रोफेशनल, जिसको ट्रेन किया जाता है कि वो अपहोल्ड करें हायर स्टैंडर्ड्स को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इफेक्टिव ऑपरेशंस को और कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेशन को. Now, all parties to corporate governance have an interest, whether direct and indirect, in the effective performance of the organization. Directors, workers, and management receive salaries, benefits, and reputation, while shareholders receive capital return. Customers receive goods and services. Suppliers receive compensation for their goods or services. In return, these individuals provide value in the form of natural, human, social and other forms of capital. अब अगर हम तमाम पार्टीज की बात करें, जो हमने मेन पार्टीज जिनकी बात की, स्टेक होल्डर्स की बात की, ये तमाम पार्टीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो इन्वॉल्व होती हैं, इनका इंटरेस्ट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो. इनका इंटरेस्ट होता है इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में. अगर हम डायरेक्टर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट की बात करें तो इनको सैलरीज मिल रही होती हैं, बेनिफिट्स और रेपुटेशन मिल रही होती है. इसी तरह से शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिटर्न मिलता है, कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज मिल रही होती हैं, सप्लायर्स को कॉम्पनसेशन मिल रही होती है कि वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके अगेंस्ट उनको कॉम्पनसेशन मिलती है. इन रिटर्न ये जो तमाम इंडिविजुअल्स हैं ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं नेचुरल, ह्यूमन, सोशल या किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ कैपिटल में. Now moving onwards, अब हम बात करेंगे principles of corporate governance की. Commonly accepted principles of corporate governance include rights and equitable treatment of shareholders. Organization should respect the right of shareholders and help shareholders to exercise those rights. They can help shareholders exercise their rights by effectively communicating information that is understandable and accessible and encouraging shareholders to participate in general meeting. Interests of other stakeholders. Organization should recognize that they have a legal and other obligations to all legitimate stakeholders who are the creditors, suppliers, customers, employees, etc. अब प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम सबसे पहले राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए शेयर होल्डर के राइट्स को. इसके लिए जरूरी है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, वो इंफॉर्मेशन जो अंडरस्टैंडेबल हो और एक्सेसिबल हो, और शेयर होल्डर्स को इनकरेज करने की जरूरत होती है कि वो जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें. इस तरह से आप राइट्स और इक्विटेबल ट्रीटमेंट को इंश्योर कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में. इसी तरह से हम इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है कि लीगल और दूसरी ऑब्लिगेशंस होती हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ ऑर्गेनाइजेशन की, और इन स्टेक होल्डर्स में क्रेडिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं. तो इन स्टेक होल्डर्स की तरफ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लीगल और दूसरी ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं जिनको फुलफिल करने की जरूरत होती है. बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को भी देखने की जरूरत होती है, उनके इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड करने की जरूरत होती है. नाउ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड. द बोर्ड नीड्स अ रेंज ऑफ स्किल्स and understanding to be able to deal with various business issues and have the ability to review and challenge management performance. It needs to be of sufficient size and have an appropriate level of commitment to fulfill its responsibilities and duties. अब अगर हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के लिए जरूरी है कि उनके पास स्किल्स हो और अंडरस्टैंडिंग हो ताकि वो बिजनेस इश्यूज के साथ डील कर सके, और उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चैलेंज कर सके. इसमें सफिशिएंट मेंबर्स होने चाहिए और उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को फुलफिल करने की. नाउ इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर. Ethical and responsible decision making is not only important for public relations, but it is also a necessary element in risk management and avoiding lawsuits. Organizations should develop a code of conduct for their directors and executives that promote ethical and responsible decision making. It is important to understand, though, that reliance by a company on the integrity and ethics of individuals is bound to eventual failure
Because of this, many organizations establish compliance and ethics programs to minimize the risk that the firm steps outside of ethical and legal boundaries. अब हम इंटेग्रिटी और एथिकल बिहेवियर की बात करते हैं। एथिकल और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग न सिर्फ पब्लिक रिलेशंस के लिए जरूरी होता है, बल्कि ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए और लॉ सूट्स को अवॉइड करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। सो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत जरूरी है कि वो डेवलप करें कोड ऑफ कंडक्ट को अपने डायरेक्टर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और ये एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हो जो प्रमोट करे एथिकल और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। सो आपकी जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एस्टैब्लिश करती हैं कंप्लायंस और एथिक्स प्रोग्राम्स। सो इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. Organizations should clarify and make publicly known the roles and responsibilities of board of directors and management to provide shareholders with a level of accountability. They should also implement procedures to independently verify and safeguard the integrity of the company's financial reporting. Disclosure of material matters concerning the organization should be timely and balanced to ensure that all investors have access to clear factual information. अब इसी तरह से डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्लैरिफाई करने की जरूरत होती है और पब्लिकली नोन होनी चाहिए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और मैनेजमेंट की, ताकि शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके कि कौन अकाउंटेबल है किस चीज के लिए, शेयर होल्डर्स को इस बात का पता हो। डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल मैटर्स जो है कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी टाइमली और बैलेंस्ड होना चाहिए सो दैट आप इंश्योर कर सकें कि इन्वेस्टर्स के पास एक्सेस हो क्लियर और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की। सो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रोल ऑफ द अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स. Financial reporting is a crucial element necessary for the corporate governance system to function effectively. Accountants and auditors are the primary providers of information to capital market participants. The directors of the company should be entitled to expect that management prepare the financial information in compliance with statutory and ethical obligations and rely on auditors' competence. Financial reporting बहुत crucial element है corporate governance system की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स प्राइमरी प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, और जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करती है स्टैट्यूटरी और एथिकल ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग, और ऑडिटर्स की कॉम्पिटेंस पर इस पूरे पर्सपेक्टिव में रिलाई किया जा रहा होता है। नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पाकिस्तान. Corporate governance is necessary to meet the increasing demand of investment capital. It enhances the performance of corporations by establishing and maintaining a corporate culture that motivates directors, managers, and entrepreneurs to maximize the company's operational efficiency and long-term productivity growth. Effective corporate governance allows the efficient use of resources. It assists in attracting lower-cost investment capital by improving investors' confidence. सो अब हम नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मदद से आप कॉर्पोरेशंस की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर को एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। आप मोटिवेट करते हैं डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को कि वो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करें और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करें विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसी तरह से इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज को इंश्योर करते हैं, लोअर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है। इसी तरह से ये इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को और लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करती है। इसी तरह से ये असिस्ट करती है कंपनीज को कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, क्राइसिस को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है और जो इनएविटेबल पीरियड्स ऑफ डिक्लाइन है उनको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। इसी तरह से हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं ओपननेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस रिपोर्टिंग की मदद से। नाउ कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. All listed companies shall publish and circulate a statement along with their annual reports to set out
the status of their compliance with the best practices of corporate governance. All listed companies shall ensure that the statement of compliance with the best practices of corporate governance is reviewed and certified by statutory auditors, where such compliance can be objectively verified before publication by listed companies. So तमाम listed companies के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो पब्लिश करें और सर्कुलेट करें स्टेटमेंट कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं. सो तमाम लिस्टेड कंपनीज ये इंश्योर करेंगी कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिव्यूड और सर्टिफाइड हो बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स और इसको ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई किया जा सकता है बिफोर पब्लिकेशन बाय लिस्टेड कंपनीज. सो कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नेसेसरी. यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.